Hello everyone, a very good evening to all. Okay, let me tell to all what we gonna to cover in this entire video. So we talk diploma student, especially DST, we go for higher study program, but we all know at stage of final year diploma student, we have number of doubts for selection of our BTech college. So here purpose of this meeting is to tell about different college of India which offering lateral entry in BTech program. Now I am requesting to all participants kindly start the presentation about lateral entry course available in all over India, just like handloom and textile technology, fashion and apparel engineering, man-made textile technology, textile plant engineering, textile chemistry, fashion technology, BTech in textile engineering, BTech in jute and fiber technology. Yes. Okay, sir. Thank you, sir, for giving the wonderful opportunity. Hello, everyone. I am Yash Arora from Varanasi, currently pursuing BTech from the Technological Institute of Textile and Sciences, Bhiwani, in Textile Technology stream. I had completed my diploma from Indian Institute of Handloom Technology, Varanasi, in 2020. TITS is established in the year of 1943. It is the institute that is developed by the great Padma Vibhushan Sri G.D. Billaji. The college is located in Haryana in Bhiwani district. The vision of the college is to become excellent knowledge enterprise. Various undergraduate programs, postgraduate programs, and PhD courses are available in TITS. The undergraduate programs are BTech in Textile Technology, BTech in Textile Chemistry, BTech in Fashion and Apparel Engineering, BTech in Computer Engineering, BTech in Mechanical Engineering, BTech in Electronics and Communication Engineering. For the textile branches, textile technology, textile chemistry, and fashion and apparel engineering, the intake for the course for 4-year degree program is 730. Admission to second year LEET is also available. The lateral entry seats depend upon the seats vacant in the first year. Maximum 20% seats are available for the LEET. The postgraduate programs are MTech in Textile, Master in Business Administration. You can also proceed pursue PhD in TITS. For the eligibility criteria for getting admission for BTech 4-year program, you must clear your plus 2 degree and give the JE paper and qualify the paper up to the cutoff level. You should you should qualify the cutoff level of the JE. For BTech lead, you must obtain a minimum of 45% marks in a recognized AICTE approved institute. You can get a direct admission in TITS. For MBA, you must clear your CMAT exam. For MTech, you must clear your GATE exam. Institute is approved by All India Council for Technical Education and affiliated to Mahasi Dayanand University. For more doubts and clarification, you can visit the TITS site, TITS Bhiwani site. Why should you come at TITS? A pulsating studying environment, highly qualified and experienced faculty members, faculty teachers, strong alumni base, excellent placement record. TITS has also get a grant from Government of Haryana for Center of Excellence for Textile. A grant of 5 crore has been issued for setup of labs and different facilities. At last but not the least, whether you are doing any course, give your best because an investment in knowledge pays the best interest. Thank you. Okay, thank you. Yes. Now I am requesting to Preeti. Okay, very good evening to sir, and thank you for giving me a chance to helping my juniors. So I'm from LD College of Engineering, which is located in Ahmedabad, Gujarat. So they offer textile technology. Basically, this college is not textile college only. Here we have branch mechanical chemicals,
बट हमें टेक्सटाइल से रिलेटेड भी बात करनी है, तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी ब्रांच है और यहाँ पे सिर्फ एक सीट जो अदर स्टेट के लिए रिजर्व है। अदरवाइज बाकी सारी की सारी सीट गुजरात स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और उनकी प्रेफरेंस भी गुजरात स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। और ये सीट भी 2019 के बाद हमने रिजर्व किया जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सो यू शुड बी ऑल इंडिया टॉपर रैंक 1, then only you can get, you will be confirmed, then only you will be confirmed to take admission in LD College of Engineering. So here only 5% seat of intact, so this will be only one. Admission process is you have to go through ACPC site. We will mention that in description, so you can get idea about how to apply. And interested fact is that कि पूरे ऑल इंडिया में इतने कम में आप इंजीनियरिंग कहीं से नहीं कर सकते जितने कम में आप इंजीनियरिंग एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कर सकते हो। सो गुजरात में बेसिकली गर्ल्स की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ 850 रुपीज पर ईयर पे करना है, वो भी कॉलेज फीस, एंड बॉयज को 2500। सो ओवरऑल आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है फॉर गर्ल्स वो 4500 में कंप्लीट हो जाएगी, एंड फॉर बॉयज अप्रोक्स 7 to 8000। सो दिस इज द इंटरेस्टेड फैक्ट फॉर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये आपको सबसे सस्ते में इंजीनियरिंग करा के देंगे। एंड यूनिवर्सिटी फॉर दैट इज GTU, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। एंड एलिजिबिलिटी criteria is that you should have complete your diploma. That's only. Special opportunity like yeah, teachers, faculties are very supportive and very well educated from IITs also. They have cleared their they have completed their MTech also. So faculties and environment का कोई इशू नहीं है, काफी अच्छे faculties हैं। Scholarship यहाँ पे no scholarship for other state students, only for Gujarat state students. If you get chance to take admission in LD College of Engineering, you should get and you should come. We are here to help you. Thank you. Okay, thank you, Preeti. And Preeti, one more request. You have to Yes, also sir. also tell us about MS University. Okay, sir. Okay. So MS University अलग ही यूनिवर्सिटी है। LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। MSU एक अलग यूनिवर्सिटी है, बट एडमिशन प्रोसेस दोनों का सेम है। ACPC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे गुजरात में सारे कॉलेज और सारी ब्रांच की एडमिशन कराती है। तो MSU ऑल्सो टेक्सटाइल के लिए बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, आप जा सकते हैं। उसकी फीस भी मतलब LD के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है MSU। वहाँ पे गर्ल्स के लिए 10,000 फीस है पर ईयर, एंड बॉयज के लिए 15,000 फीस है। एंड वहाँ पे टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ब्रांचेस भी हैं। एंड यू कैन गेट इजिली एडमिशन इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री। वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर्स की सीट भी होती हैं वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू फिल की जाती हैं। तो इस बार भी 68 सीट्स वैकेंट थी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, एंड 50 समथिंग सीट्स वैकेंट थी टेक्सटाइल केमिस्ट्री में। तो MSU में भी आप जा सकते हैं, सेम प्रोसेस है। फीस थोड़ा सा वहाँ की ज्यादा है, 15,000 फॉर बॉयज एंड 10,000 फॉर गर्ल्स। Okay. एनीथिंग एल्स सर? No, it's okay. Great. Now we are moving Thank forward you. to our next candidate, Janvi Ganantra from DKTE. Yes, sir. Hello, friends. Good evening, everyone. So let's begin with my introduction first. So I am Janvi Ganatra from Sangli, and I'm currently pursuing my bachelor's in textiles from DKT's Textile and Engineering Institute, Ichalkaranji. I'm in final year and my branch is fashion technology. So in DKT, we have 5 textile branches, which are named as textile technology, man-made textile technology, textile plant engineering, textile chemistry, and fashion technology. So beginning with each branch introduction. So basically, we have 10% of the total intake seats of all the total seats. So for textile technology and textile chemistry, we have 60 seats. So for lateral entry, we have 6 seats, and for other courses, we have intake of 30 seats. So for lateral entry, we have 3 seats. So talking about the place, Ichalkaranji. Ichalkaranji is a city which is located in Kolhapur district and which is known for textiles. It is considered as Manchester of Maharashtra, and
college life over here in DKT is very marks. And so once we complete talking about opportunities, so once we complete bachelor's, we have number of opportunities. But while in college, we itself have a credit transfer scheme for students, where students go to foreign universities. We have MOU with various foreign universities where you can go for exchange semester, and we have compulsory in-plant training for students after 4th and 6th semester. And at the end of 5th semester, we have an industrial tour. Apart from technical knowledge, we also have soft skill programs during campus interviews, which are conducted by the experts for a week or more than that, and for both semesters of second and third year. And we are also provided with the mentor for career advice, support, and guidance, which is scheduled every week for 1 hour each. So yes, DKT can be considered as a good place if you want to explore textile in very detail, as you are going to stay in the place where you are actually where industrially which is considered as a Manchester, like it is the textile hub. So yes, each and every branch has its own pros, and it could be considered as one of the best option if you choose DKT. So yes, DKT is full of opportunities and chances it has to offer, so you can surely choose DKT as your good as an option. Yes. Okay, so what was the actual process of admission? So for admission procedure, whenever the actual admission for first year starts, like for new admission, we have an option for lateral entry admission as well, which are not yet started and will be soon starting. So you can just apply, and for the further, if you have been selected for that, like if you get, so further guidance will be provided by the college itself. You get connected to the college, and Okay. ओके ये तो यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। हम लोग जो पढ़ते हैं ना सेमी ऑटोमेटिक लूम, तो सेमी ऑटोमेटिक लूम भी एक डेवलप हुआ है इसी इच्छा कलंजी नाम से ही उसका नाम है। ओके, सो ये तो डेवलपमेंट की बात थी। और जितने भी टेक्सटाइल्स के हैं तो वो एक मैनचेस्टर है ये, और इटसेल्फ वहाँ का प्रोडक्शन और रिसर्च भी बहुत है जो अभी काम पे है और इंडस्ट्री लेवल पे भी है। ओके, थैंक यू जानवी। नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट, नेहा दुबे। thank you. Yes, sir. Hello, everyone. Myself, Neha Dubey. I am pursuing my BTech final year from MLBTI, Bhilwara, Rajasthan. Place is Bhilwara, Rajasthan, and number of courses: BTech in Mechanical, BTech in Information Technology, BTech in Textile Technology, and BTech in Textile Chemistry, and MTech also. And number of seats in textile technology, there is a 60 seats, and for textile chemistry 40 and sometimes 60 भी होता है, but depends on regular admission. अगर regular seats पूरी full cover हो जाती है, अगर seats बचता है तो वो डिप्लोमा लीव के लिए वो हो जाता है फिर। और एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस होता है। फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स गेट है वो IIT एग्जाम क्वालिफाई एंड कट ऑफ के ऊपर होता है। उसके बाद लीव के लिए ऑनलाइन प्रोसेस एंड ऑफलाइन प्रोसेस दोनों अवेलेबल है। एफिलिएशन यूनिवर्सिटी RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी डिप्लोमा फॉर लीव स्टूडेंट्स डिप्लोमा, मिनिमम मार्क्स 75% मेरे टाइम पे था। स्कॉलरशिप प्रोग्राम राजस्थान के थ्रू एक स्कॉलरशिप दी जाती है जो कि ओनली SC ST एंड OBC के लिए होता है। एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूपी के थ्रू एक स्कॉलरशिप दिया जाता है जो केवल जर्नल के लिए होता है। एंड और ओके, टेल अस व्हाट इज द रीप एंड लीप? लीप एंड रीप लेटरल एंट्री, लीप और री। ओके, आई थिंक ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे दो प्रोसेस चलती हैं, रीप और लीप। तो रीप हो गया कि 4 इयर्स के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, ओके। और लीप हो गया जब लेटरल एंट्री के थ्रू, ओके। तो यस सर,
यहाँ का कहना कि मतलब अगर आपको लेटरल एंट्री चाहिए तो लीव करके आएगा आरटीयू की वेबसाइट में, वहाँ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम करेक्ट नेहा? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जफर अहमद। Yes, sir. Okay. Good evening, sir. Good evening, please. Good evening, sir, and thank you, sir, for giving me the opportunity for helping their juniors, sir. Sir, presently I am doing BTech in IIST Salem, Indian Institute of Handloom Technology, Salem, which is located in Tamil Nadu, sir. Sir, courses are offered BTech in, here is only one course, that is BTech in Handloom and Textile Technology, sir. As per my mine is concerned that intake capacity is 31 seats, sir. Only 31 seats for lateral entry students in lateral entry BTech, sir. Okay. The fee structure of this institute is that in first year when you got admission in BTech, lateral entry is second year, you have to pay for the whole year 50,000, sir. Okay. And next year, the third year, sir, then you have to pay 40, sir. And next year, same for final year, that is 40,000, sir. The admission process, as per, I am going to talk about the admission process. The forms will come in the website of iisttnslm.edu.in in the month of September to October, mid-September to mid-October, sir. Is it clear, sir? My voice is clear, sir. Yes, clear. Okay. In the month of mid of September to October. Okay. Admission process is wholly on the basis of merit basis. But but the percentage you have got in diploma, on the basis of that very percentage you got it admission in lateral entry BTech second year, sir. Interesting facts about my college, that it is a good institute for handloom and textile technology. Yes, sir. Okay. As per my affiliation, it is approved by All India Council of Technical Education, AICTE, sir. Okay. And university affiliation is Anna University, sir. It is basically a central college, but it has a BTech affiliation with Anna University, sir. Yes. And next, we are going to talk about the facts, sir. We can apply for all types of national scholarships, sir. Okay. We can apply for all national type scholarships, that's NSP or other scholarships. But from this year, Central has decided to give the stipend of 3,000 per month to the student. But the condition is that the student has to attendance of 80% in the current month, sir. Yes. Next, Okay. my wishes, as per my mind is concerned, I have noticed that this institution is better for textile field, for handloom and textile technology, sir. And I hope my juniors got selected. And further, if they feel any problem by filling the application form, they can contact my number and the given social media platforms. Thank you, sir. Okay, thank you. Anna University is one of reputed university for textiles, and also Indian Institute of Handloom Technology is best for BTech in handloom and textile technology. This is the first institute of and which provide us handloom and textile technology. Okay, so great. Now moving next Sir, candidate. I can add some more things. Okay, add. सर इन मतलब जो 60 सीट्स होती हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री के लिए, इसमें से कुछ सीट गैस के लिए होती हैं, गैस में मतलब गवर्नमेंट एडेड सीट, एंड कुछ एसएफएस के लिए होती हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। तो जो गैस की जो सीट्स ओके यस सर बोलिए। आप एमएलबीटी के लिए बोल रहे हैं ना, मैं ये ऐड करना चाह रहा था, ये कंफ्यूजन हो जाए। यस सर एमएलबीटी, यस सर। ओके यस सर एमएलबीटी। ओके। तो जो गैस की जो सीट्स जो होती है ना, वो डिपेंड्स होती है आपके हाईएस्ट मार्क्स पे। ओके। उसके ऊपर डिपेंड्स होती है। और जो गैस सीट जिसको अवेलेबल होती है उसकी फी लाइक एसएफएस के लिए 31,000 होती है पर सेमेस्टर, और गैस के लिए 19,000 होती है। ओके। इंक्लूडिंग हॉस्टल फी। ओके, ग्रेट। Okay, thank you, Neha. Now moving Janvi and Kole. Yes, sir.
Okay. Good evening, sir. Good evening. Myself Janvi Kollen. I am from Nagpur. तो मेरे कॉलेज का नाम सबसे पहले श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय। ये कॉलेज एमपी मध्य प्रदेश में उज्जैन रोड इंदौर में है। Okay. तो कॉलेज के सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस नॉर्मली अगर लैटरल एंट्री के लिए जा रहे हो तो और डिप्लोमा में अवार्ड बेसिस पर एंट्री देखते हैं वो, मतलब मार्क्स के। वहाँ पे जाके डायरेक्ट मतलब एडमिशन हो जाती है, मतलब कॉलेज में विजिट करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन उसके बाद एडमिशन प्रोसेस और पेमेंट। ये सब प्रोसेस होने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एडमिशन हो जाती है। अभी कोरोना का शुरू है, कोविड, उसकी वजह से ऑनलाइन भी वो प्रोसेस कर सकते हैं। देन उसके बाद स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप मेरिट स्कॉलरशिप सिस्टम है यहाँ पे। अगर 8.5 CGPA के मोर देन अगर हमारे CGPA रहे तो हमें 50 जो फीस हमने दी है उसके 50% स्कॉलरशिप हमें मिल जाएगी। देन उसके बाद 9.5 CGPA मोर देन अगर है तो हमें 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर 75 CGPA है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। हमने जितनी फीस दी है उसके हिसाब से इस परसेंटेज में हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। Okay. देन ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है। वैसे तो श्री वैष्णव ग्रुप 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये इंस्टीट्यूट अभी 2016 में एस्टेब्लिश है। और उसके बाद यहाँ पे बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये एक फील्ड है, एक ही फील्ड है यहाँ पे उसमें बीटेक होता है, बाद में एमटेक भी होता है, और अलग अलग BSc BBA ये सब भी कोर्सेज वहाँ पे है, अलग अलग ब्रांचेस। देन उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में बोले तो अच्छी कंपनियां आती है, रेमंड, अरविंदो मिल्स और वर्धमान, ऐसे टाइप के अच्छे प्लेसमेंट कंपनीज आती है। और लास्ट ईयर 100% प्लेसमेंट हुआ था सब स्टूडेंट का। Okay. और कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड। और जो अच्छी बात मुझे लगी वो है कि यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा है। कॉलेज इज वेरी क्लीन। Okay. और अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो एक वेबसाइट भी है कॉलेज की, sww.edu.in। यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन बताए जाते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू जानवी। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉलेज है। From basically Varanasi. Now I am a student of DNGC, Jawaharlal Nehru Government Engineering College, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। हमारे कॉलेज में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, जिसकी 60 सीटें होती हैं और 20% सीटें हमारी लेटरल एंट्री की होती हैं, और जितनी सीटें खाली रह जाती हैं उनमें भी लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हैं। ओके। यहाँ ट्रेड और टेक्सटाइल के अलावा भी यहाँ और ट्रेड हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ओके। यहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म निकलता है SPTU की वेबसाइट पे, जो कि जून में निकलता है। अभी कोरोना का टाइम है तो अभी तक एडमिशन चल रहा है सितंबर तक, नहीं तो ऐसे मई और जून में कंप्लीट हो जाती है हमारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। ओके। इसका स्ट्रक्चर होता है 27,500 लड़कों के लिए होता है, और लड़कियों के लिए होता है 12,050 रुपया। ओके। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी यहाँ चलते हैं, वो कॉलेज की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है स्कॉलरशिप। NSP बोलते हैं उसको, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ओके। ये तो लेते हैं कॉलेज। और हाँ, यहाँ से प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में होती है, जैसे इसमें हमारे वर्धमान है, इनसम है, और नाहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, ऐसी और भी कंपनियां हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। Oh, sorry for interrupt, and again welcome back. This is not our fault. This is a fault of Zoom. Okay,
So thank you, Krishna and Ravi Mishra. Now I am again requesting to you. Yes, sir. Kindly Okay, sir. proceed. Thank you, sir. Okay. Good evening, everyone. Myself, Ravi Kumar Mishra, and I am a student of Nitra Technical Campus, Ghaziabad. Place Ghaziabad, number of courses in Nitra Technical Campus: BTech in Computer Science, BTech in Artificial Intelligence, and BTech of Tactile Technology. Later एडमिशन प्रोसेस आप यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आप न्यूट्रा टेक्निकल कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं. इंटरेस्टेड फैक्ट है, good infrastructure and experienced teacher. They are scientists and they are performed lot of testing and observations of Nitra. They are provided good times in teachers. Affiliated college, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. Eligibility criteria: diploma. You will done diploma and get let in Nitra Technical Campus. Scholarship प्रोग्राम सर 100%. जितने भी यूपी के बच्चे हैं सबकी स्कॉलरशिप जनरली आ जाती है, सबकी अप्रॉक्स. स्पेशल अपॉर्चुनिटी सर, निट्रा टेक्निकल कैंपस में जितनी भी मशीनें हैं लाइक डिपार्टमेंट्स स्पिनिंग, वेविंग, टेस्टिंग, सभी वर्किंग कंडीशन में है. स्पिनिंग भी प्रोसेस वहाँ पर होता है, वेविंग का भी प्रोसेस होता है और टेस्टिंग में भी. और निट्रा टेक्निकल कैंपस में रिसर्च होता है. तो आप निट्रा टेक्निकल कैंपस में फैब्रिक यार्न्स और आउटसाइडर फैब्रिक का भी यहाँ पर टेस्टिंग और रिसर्च होता है. ओके, बस. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. Now moving our next one of most important college, Vishal Babu. Yes, sir. Thank you. Good evening, sir. Good evening. So, I'm going to talk about UPTI Kanpur, Uttar Pradesh Textile Technology Institute. Sir, the voice is clear? Clear. Let me start. Kanpur is a premier textile institute of North India. It made modest start in 1914. However, in 1937, Government Central Textile Institute coming to existing, it present form a major of two premier textile institutes, that is one at Kanpur and another at Turkey. Department of Textile Technology. In 1958, 4-year degree program in textile technology and textile chemistry were started. In 1976, the institute planned in starting a 4-year degree program in man-made fiber technology, and the final one is textile engineering was added under World Bank added technical education quality improvement program of Government of India. Okay. Our academic program are as textile technology, textile chemistry, man-made fiber technology, textile engineering, and the intake is 200. Separately, textile technology have 40, textile chemistry having 60, man-made fiber and technology 60, textile engineering 40. और लेटरल एंट्री के लिए 10% सब में सीट्स अवेलेबल है. ओके. जैसे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 40 का 4, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 6, मैनमेड फाइबर एंड टेक्नोलॉजी में 6, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 6. ओके. तो बात करते हैं इसके कोर्स की. तो बीटेक आफ्टर डिप्लोमा 3 साल का होता है, और इसकी प्रायोरिटी की बात करें तो जब हम एडमिशन लेते हैं यूपी सेट एग्जाम के थ्रू, पहले यूपीएससी से होता था, अब यूपीएसई से नहीं होता है. तो फर्स्ट ईयर का जेईई मेंस के थ्रू एंड द लेटरल यूपी सेट, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट. ओके. तो इसमें बात करते हैं एडमिशन के प्रोसीजर की. तो पहले एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है. ओके. सिर्फ क्वालिफाई नहीं है, और आई थिंक 1000 से 5000 ऑल इंडिया रैंक होती है. तो लगभग इंस्टीट्यूट में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है. ओके. नंबर ऑफ सीट्स 20, टोटल 20 है. एडमिशन प्रोसीजर इस टाइम उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट से होगा. तो उसके लिए अभी आंसर की आई है, आई थिंक रिजल्ट अभी नहीं है, डिक्लेयर हुआ है. तो हाँ, इस रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट ये इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करता है कि रैंक कितनी होनी है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेरिट वो रैंक डिक्लेयर होगा. उसके बाद काउंसलिंग कराना होता है सारे स्टूडेंट को. और
में हेलो हाँ, वॉइस आ रही है, गो अहेड। ओके, काउंसलिंग कराने पे प्रोसीजर है कि काउंसलिंग कराने पे अगर कॉलेज की सीट अलॉट होती है किसी भी ब्रांच में, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का या टीसी या टीई या मैनेजमेंट फाइबर टेक्नोलॉजी में, तो अलॉटमेंट लेटर के साथ कॉलेज में एक डेट प्रोवाइड की जाती है कॉलेज के, और उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सीट अलॉटमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एडमिशन कुछ है एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कॉलेज आके सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ में एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल रिक्वायर्ड, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एंड दैट्स इनफ। ओके, और बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर इज करंट फीस स्ट्रक्चर इज फॉर फर्स्ट ईयर इज 1,03,900 है, और लेटरल का जो होता है तो वो फर्स्ट ईयर का ही पड़ता है फीस। ओके, अगर सेकंड ईयर में एडमिशन होता है तो फर्स्ट ईयर की फीस पड़ेगी, जब थर्ड ईयर में एडमिशन होगा तो सेकंड ईयर की फीस पड़ेगी। ये सिर्फ लेटरल एंट्री के लिए है। ओके, और SC एंड ST कैंडिडेट for SC and ST candidate registration for first year student and second year required to pay 42,800 रुपये लेस काउंसलिंग फीस ऑलरेडी पेड। अगर 12,000 रुपये आप काउंसलिंग का पहले दे देते हैं तो बाद में नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद जो फीस वेवर कोटा में आते हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो फीस वेवर कोटा में आते हैं, तो उनको फीस जो ट्यूशन फीस होती है वो भी नहीं देनी होती है। ये आई थिंक 5% बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। सम स्टूडेंट आर एडमिटेड लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर and the next eligibility criteria for first year 10+2 and the second year lateral entry diploma या polytechnic। स्पेशल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, एंड ऑल अदर एक्टिविटीज आर देयर। एनीथिंग एल्स? हेलो हेलो, थैंक यू सो मच विशाल, आपने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ओके, सो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो गेस्ट भी हमारे ओके जो आज के गेस्ट हैं वो भी वेट कर रहे हैं। सो नाउ मूविंग अवर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। अर्पिता। Okay, I think Arpita is not available. So we are moving next. Rohit. Sir, am I audible, sir? हाँ, audible. Please proceed. Hello, everyone. Hello. Hello. हाँ रोहित, start करिए please. Sir. Hello, everyone. My name is Rohit Kumar Devnath, an alumni of Indian Institution of Handloom Technology, Pulia, and later on in the Government College of Engineering and Textile Technology, Shirampur. So, Government College of Engineering and Textile Technology, Shirampur was established in the year of 1908. Basically, our college offered the courses in the undergraduation, that is the BTech in Textile Technology, BTech in Apparel Production Management, BTech in Computer Science and Engineering, and BTech in Information Technology. In post-graduation, MTech in Textile Technology, MTech in Chemical Personal Textiles, and also PhD. So for first year, we have 66, and for the lateral entry, according to the vacancy in the first year, generally minimum 8 to 10 seats are there for the lateral entry in the TT and the APM. So admission process, for taking admission in the lateral entry, you have to write the examination WBJE GILET. Okay. That is the West Bengal Joint Entrance Examination, and from there only you can take all the lateral entry admission in all the colleges across the West Bengal.
So now coming back to interest fact. So we have the best lab facilities irrespective of domain, spinning, weaving, processing, etc. And 100% placement in the textiles and apparel in last years as well. And university, Maulana Abdul Kalam University of Technology, which is erstwhile, which was West Bengal University of Technology. Okay. And scholarship for the toppers from rank 1st to 5, they will get a pre-waiver, and along with that, if a student belongs to low income family, then they will also get a free waiver. Okay. And all the West Bengal government and government of India scholarship may be applicable. So I would like to thank DSCD Vastra for giving me this opportunity to help students across the country. Thank you, sir. Okay, thank you. Anything to नहीं, थैंक यू। सही ऐड किया। यहाँ पे मेरा भी एक पॉइंट है कि हमें स्टूडेंट को ना कॉलेज के साथ साथ ये भी सीखना चाहिए कि आपको किस टाइप की सीट्स होती हैं जो वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी आपने बोला TFW, ओके, ट्यूशन फीस वेरियर, और इसी तरीके से गैस आया एक वर्ड, और कहते हैं SFS आया। इसी तरीके से और भी है, जैसे फ्रीडम फाइटर के लिए भी होता है। और कहते हैं जो मतलब किस ये क्या है, यूनिवर्सिटी के द्वारा एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि इस टाइप के सीट्स जिनको अलॉट होंगी तो उनको इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएंगी। तो आई थिंक वो भी एक लर्न होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉलेज कौन कौन सी सीट प्रोवाइड कराता है या उन सीट्स को अचीव करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ओके, थैंक यू। नाउ वी आर मूविंग अगेन and I am requesting to Mr. M. Karthik to tell us about IIST Varanasi. Okay, Amit, मेरा audible? Yes, audible. Okay, thank you. Good evening to all. Good evening. But it is one of the most useful event है. Okay, कितना कॉलेज है, सारा का लेटर एंट्री का प्रोसीजर, बट टिल नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट का पता नहीं होगा। ये इवेंट तो मोस्ट यूजेबल होगा फॉर लेटर एंट्री स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आई कमिंग टू IIST वाराणसी। ओके, IIST वाराणसी BTech courses in handloom and textile technology started this year onwards. Actually, the first year will be started last year itself, but due to the COVID pandemic, it is postponed to academic season 21 and 22. Okay, now the seats was total 66. Okay, the ratio between seats 50:50 है from AKTU. Our BTech course is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Okay, and another 50 seat is filled by JEE examinations. Okay, now in JEE examination we can reserved category also है. Suppose open category will, for example, okay, open category will some 10 seats, but वो 10 seats में armed force reservation, military, freedom fighters and TF, tuition fees waiver, there are all category also for filling the seats. Okay, now the first year was last week or before that only JEE examination results announced. Now the still counseling process is going. Okay, then our institute already approved by AAC TE New Delhi. Okay, and one more here, the later entry process will be start on next year onwards, the academic season 2022 to 23. Okay, and Amit, I can listen one article. 1 year, I think the article was 1 year before that. Okay, I can read the article. The article come from the Hindu newspaper on business line columns. It is possible that sometime in the future, a degree from IIHT may be more valuable than a degree from IIT. Okay, this is a small article here. It came on 1 year back, the Hindu newspaper and business line section.
Okay, I am also feel better. The news will also come true. Okay, no doubt. Okay, just one line I want to add. We as a Yes. IIST here mostly are from the DST background. Okay, so IIST established Yes. in 1911. Okay, formerly known Central Weaving School. Okay, in 1956, coming under central government. ओके सो आईएसटी बहुत पुराना है, अभी कोर्सेस स्टार्ट किए हैं, तो आगे चल के हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, तो एंड लास्ट की कॉलेज सभी अच्छे हैं। ओके, नो डाउट। सो थैंक यू ऑल आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और अनाउंस कर दूं जो आप लोगों को भी नहीं पता है कि अभी हमारे साथ 2 सर जुड़ने वाले हैं। ओके, उन्होंने भी अपनी टेक्सटाइल की जर्नी डिप्लोमा से ही स्टार्ट किया था टीएसटी से। ओके, तो डिप्लोमा, फिर उसके बाद बीटेक, फिर एमटेक और अभी पीएचडी परसुइंग है। तो उनसे भी कुछ उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करेंगे। और इवन आप लोगों को भी कोई फर्दर स्टडी से रिलेटेड और अपने जूनियर्स के मैसेज देने के लिए कि उनको डिप्लोमा टाइम पे क्या करना चाहिए, वो हम उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैं उनको इन्वाइट करता हूँ, वो सर ज्वाइन होंगे। और मैं ये अपना स्लाइड ऑफ कर रहा हूँ। ओके, शुड आई गो? Yes, sir. Okay. ओके, किन्ना सर? यस अरोरा? Yes, sir. ओके, आई थिंक हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मुकेश किन्ना सर, आर यू देयर? सोमदत्ता सर, सोमदत्ता सर? हेलो हेलो, यस सर, आप ऑडिबल हैं। किन्ना सर? am I audible? यस सर। Yeah. Am I audible to you? यस सर, यस सर। Okay, thank you. Okay, now I'm requesting to Yes Aurora. Please welcome. A warm welcome to our respected seniors who have started the journey of textile from the IIST, Mr. Somdatta Sharma sir and Mr. Mukesh Khanna sir. A brief intro about their educational qualification of Mr. Somdatta Sharma sir has completed diploma from IIST Burger in 2014, BTech from MLV-TEC in 2017, MTech from Department of Jute and Fiber Technology in 2019, and a short brief introduction about Mukesh Khanna sir towards the educational qualification. He has also started the journey of textile from IIST, completed a diploma in 2011 from IIST Jodhpur, BTech from MLV TEC in 2014, MTech from MLV TEC in 2018, and currently pursuing PhD from MLV TEC. Okay, Kinna sir. Yes. तो सर मोस्टली वेलकम और आप दोनों के लिए। और आज आपका मेन पर्पज है कि आप अपना एक्सपीरियंस सर हम लोगों से शेयर करें कि जैसे पहले ही स्टार्ट करते हैं हम डिप्लोमा लेवल से कि अगर हमें टेक्सटाइल में अच्छी जर्नी बनानी है तो जो अभी डिप्लोमा टाइम के स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट चीज क्या करना चाहिए या कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए और किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा आपका, अगर आप डिप्लोमा में आ गए हैं, आपने टेक्सटाइल चूज कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचिए कि आपने डिप्लोमा में क्यों आ रहे हैं।
फर्स्ट आपका विजन क्लियर होना चाहिए एक चीज के लिए। आप जिस भी चीज में जा रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हम इस लाइन में क्यों जा रहे हैं। ओके, एडमिशन ले लिया है तो ऑल यू हैव टू वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड कीजिए, वहां मेहनत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने डिप्लोमा कर रखा है, वो बीटेक है, हमसे आगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप वहाँ अपना काम करेंगे, अच्छा आप वहाँ आउटपुट देंगे तो ऑब्वियसली आप ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो मेन आपका पर फोकस होना चाहिए कि हम चाहे डिप्लोमा कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो। ठीक है, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन पड़ेगा आपके हार्ड वर्क का। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं। डिप्लोमा के 3 इयर्स होते हैं, 3 इयर्स में आप इतना गेन कर सकते हैं कि आप आगे कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे, कहीं का कोई भी इंटरव्यू फेस करोगे तो आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हो आप। ओके, ये तो हो गया डिप्लोमा। अब आता है नेक्स्ट कि फर्दर स्टडीज का। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, वो आके पूछते हैं सर हमें आगे स्टडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर मेरा एक क्वेश्चन रहता है सिंपल सा, मुझे कि आप फर्दर स्टडीज क्यों करना चाहते हैं। तो कुछ का रहता है सर उस कॉलेज से बीटेक अच्छा हो रहा है वहां से कर लेते हैं, उससे अच्छा हो रहा है वहां से कर लेते हैं। तो ये कोई आंसर नहीं होता उनका, क्योंकि उनका भी विजन क्लियर नहीं है। उनका क्या है कि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मेरे क्लीग्स कर रहे हैं यहाँ से, तो मैं वहां से भी कर लूंगा मैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपना फोकस कीजिए कि आपको फर्दर स्टडीज में क्यों जाना है। यस सर। आप फर्दर स्टडीज के लिए रेडी हैं तो आप वहां जाइएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीटेक करेंगे तभी अच्छी जॉब लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिप्लोमा बेस पे भी बहुत अच्छे मेरे सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं मेरे। आपके सर हैं अमित शुक्ला जी, ये खुद डिप्लोमा ही है। आप देखिए आज कहाँ पर हैं ये। Am I audible to you? Yes sir, yes sir. Clear आ रहा है voice? Okay, thank you so much sir. Now I'm requesting to rest participants कि can ask the question to sir and Somdatta sir. Sir, I want to ask something. During our degree or diploma, what the extra skills should we learn? Can you repeat? Can you repeat? Sir, during our diploma or degree, what the extra skills should we learn, which will be beneficial for us? Okay, beneficial. आप एक चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज में, ठीक है। आप 3 इयर्स आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे, बीटेक में 3 ईयर इन्वेस्ट, ठीक है। आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो उसमें क्या, या डिप्लोमा क्या है, बेसिक क्लियर कराएगा आपके। डिप्लोमा बेसिक क्लियर कराएगा, लेकिन जैसे ही आप फर्दर स्टडीज में जाओगे वहाँ आपका माइंड और डेवलप होगा, आपको 100 चीजें सीखने की मिलेंगी आपको वहाँ पे। डिफरेंट टाइप का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, डिफरेंट टाइप के आपको इंटरेक्ट होगे पीपल से, तो वहाँ पे अपना ये फर्दर चीज का बहुत ज्यादा फायदा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हम फर्दर चीज में क्यों जाना चाहते हैं। ओके, आप 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा आपको। लेकिन ये बैचमेट है उस कॉलेज में जा रहे हैं, हमें वहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले अच्छे से चूज कीजिए। इंडिया में ऑल ओवर आई थिंक समथिंग 15 to 18 कॉलेज होंगे जो एक कोर्स बीटेक कोर्स कराते हैं। तो आप पहले अच्छे से उनको चूज कीजिए, वहाँ के स्टूडेंट से उनसे बात कीजिए और उसके बाद ही चूज कीजिए आपकी मुझे कहाँ से करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर अब मैं सोमदत्ता सर से बोलना चाहूँगा। सर को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, साथ रहे भी हैं। तो सर का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत कुछ सीखा है। तो सर से मैं यही पूछना चाहूँगा कि सर हमें कुछ ऐसा गाइड करिए कि हम भी सेम ऐसे ही शांत स्वभाव के रह सकें। पहले सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और किन्ना सर जो हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो, शांत स्वभाव, ये जो स्वभाव किसको कहते हैं, जो तुम्हारे भीतर जो अपना भाव है उसको ही स्वभाव कहते हैं। यस सर। अब तुम्हारे भीतर शांति है कि अशांति है वो तुमको डिसाइड करना है। यस सर। तुम शांत हो या अशांत हो वो पहले तुम खुद देखो। ओके सर। जैसे हम पढ़ाई जो करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उसका एक जो शुद्ध हिंदी शब्द उसको कहते हैं स्वाध्याय कहते हैं उसको। यस सर। स्वाध्याय माने होता है स्व अध्याय होता है, मतलब अपने आप को पढ़ना। यस सर। देखो, तुम्हारे सबसे करीब तुम ही हो और कोई तुमसे तुम्हारे ज्यादा करीब और कोई नहीं है। यस सर। इसलिए तुम अपने आप को जितना जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता, इसलिए कोई भी डिसीजन लो तो पहले अपने आप को पूछो। यस सर। पहले अपने आप की स्टडी करो कि तुम में क्या कमियां हैं। यस सर। हम देखो, हम
फेसबुक में पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम में पढ़ते हैं, बहुत सारे कोटेशन पढ़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसमें बहुत सारे ये आते रहते हैं, ये हम सब देखते हैं। यस सर। पर जब हम में आता है तो हम खुद डिसीजन नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यस सर। तो इस हिसाब से पहले अपने आप को स्टडी करना पड़ता है कि अभी ये जो मैं जो स्टेप ले रहा हूँ ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। यस सर। ये मैं अगर करूंगा तो ये दूसरे किसी के ऊपर गलत प्रभाव डालेगा क्या? यस सर। क्योंकि अगर किसी के ऊपर गलत प्रभाव उसमें आता है तो वो मेरे स्वार्थ के लिए हो जाता है। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या होगा, दूसरे किसी का अगर गड़बड़ होता है तो हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारा एनवायरनमेंट भी खराब होता है, तो खराब एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमें फिर अशांति में ही रहना पड़ेगा। यस सर। तो सबसे पहले अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, अपने पर्सनालिटी को, वो खुद अपने आप भीतर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको डिसाइड करके उसको पहले लिस्ट बनाना, बिल्कुल। किस पॉइंट के ऊपर पहले वर्क कर सकते हो उस पॉइंट को पहले देखना, उसके ऊपर वर्क करना। एक साथ अच्छा हो जाऊंगा ऐसा नहीं, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरा अच्छा हूँ, मेरे अंदर अभी भी गलतियां हैं, पर क्या है स्टेप वाइज एक एक करके उसको सुधारते जाना। यस सर। और ये है कि शांत रहने का एक और ये है कि जितना हो सके चुपचाप रहने की कोशिश करना, मतलब कॉन्शियसली। ऐसे तो रात में सोते हैं तो चुपचाप भी पड़े रहते हैं, पर कॉन्शियसली अपने माइंड को सेट करना, वीकली मतलब पर डे 1 घंटा कम से कम यस सर। माइंड को सेट करना कि हाँ इतना से इतना टाइम मैं चुपचाप रहूंगा। मैं एग्जांपल देता हूं तुमको समझ में आएगा। जैसे एक बोतल में पानी भरा है 75%, ओके। तो बोतल जो है जब तक उसको हम टिल्ट करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, तो क्या होगा, अंदर जो पानी है वो भी उसका मूवमेंट होता रहेगा, उसमें टर्बुलेंसी आती रहेगी। यस पर सर। क्या है, जब बोतल को टेबल में रख दोगे तो पहले कुछ टाइम के लिए क्या होगा देखना, वो पानी का हिलना बंद नहीं होगा, वो हिलता ही रहेगा, हिलता ही रहेगा। उसके साथ क्या होगा, बोतल में भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होता रहेगा। बिल्कुल सर। एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पानी भी है वो भी धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा उसके अंदर। ऐसे ही क्या होता है, जो बोतल है वो हमारा शरीर है और पानी जो है हमारा मन। यस सर। हम फिजिकल एक्टिविटी को जितना एक्सट्रोवर्ट करते जाएंगे, जितना इन्वॉल्व होते जाएंगे बाहर में, मन भी भीतर उतना मल्टीप्लाई करता जाएगा और अशांत होता जाएगा। बिल्कुल सर। इसीलिए कम से कम दिन में 10-15 मिनट ही टाइम निकाल के थोड़ा शांत होकर बैठने की कोशिश करना, चुपचाप, बिना हिला डुले, कुछ नहीं। उसमें देखना बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे अंदर आते जाएंगे, उसको बस विटनेस के हिसाब से देखना, थॉट्स को विटनेस के हिसाब से देखना। इसका मतलब क्या, देखना कभी कभी एक थॉट आता है, उसको हम सोचते सोचते किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं, दूसरा थॉट में पहुंच जाते हैं। 1 घंटे बाद देखना जहां से चालू किए होगे उस बारे में तुम नहीं सोच रहे हो, किसी दूसरे बारे में सोच रहे हो। तो क्या वो थॉट्स जो है वो हमको कंट्रोल करने हैं, तो हमको क्या है, हमको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। इसीलिए एक बात, शांत रहने के लिए पहले प्रतिदिन क्या करना, 10 मिनट कम से कम स्टेबल होकर बैठना और उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करना। दूसरी बात यह है कि हफ्ते में कम से कम 1 घंटा या दिन में 1 घंटा भी ले सके तो अच्छा, कॉन्शियसली सजगता के साथ चुपचाप रहना। मतलब तुमको पता होना चाहिए कि मैं कॉन्शियसली चुप हूं। ऐसा करते करते क्या होगा, तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और कुछ पूछना है? यस सर। किन्नर सर जी सॉरी, एक चीज और देखिए सर, कि जैसे आज एक सेकंड, गला खराब हो रहा है। किसी और का है कोई क्वेश्चन? हाँ यस सर। ओके, गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन आप तीनों टीचर से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेक्सटाइल में गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या क्या वैकेंसीज होती हैं और क्या क्या उनके प्रोसेस होते हैं, लाइक वीविंग सर्विस सेंटर में, एडमिनिस्ट्रेटर में, वो सब कौन कौन सी वैकेंसी गवर्नमेंट बेसिस पे होती हैं और उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं? ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि आपने डिप्लोमा किया है DST से, राइट? यस सर, DSTT फ्रॉम IST सेलम। हाँ, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास यही है कि आपने हैंडलूम से डिप्लोमा किया है। काफी वैकेंसीज हैं
अपनी WSC में निकलती हैं, IST में निकलती हैं, सेंट्रल हैंडलूम बोर्ड है वहां से निकलती हैं, जिनमें कंपलसरी बोलते हैं कि डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ओके, ये तो हो गए डिप्लोमा बेस पे। अब जैसे आप फर्दर स्टेजेस कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, इसके बाद काफी वैकेंसीज हैं जो आपकी निकलती हैं। ओके, जैसे निट्रा वगैरह, निट्रा है अपना, बिट्रा है, इनमें निकलती हैं अपनी जो अपना जो SSRs रहते हैं इनमें निकलती है। इवेलुएटर रहते हैं, इवेलुएटर एक नई पोस्ट निकली है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, 2nd ग्रेड पोस्ट है वो, और एक रहता है टेक्सटाइल सेंट्रल सिल्क बोर्ड में। ओके, ये सभी आपको ग्रेजुएट बेस पे मिलेंगी आपको। इसके अलावा सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज इन डिफेंस, डिफेंस में टेक्सटाइल का काफी अच्छा चल रहा है अभी, तो उसमें भी काफी वैकेंसीज आ रही है, गवर्नमेंट जॉब, गजेटेड पोस्ट है आपकी, काफी बढ़िया है। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको वर्क हार्ड सिंस डिप्लोमा, आप डिप्लोमा से स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आपका अगर बेस क्लियर रहेगा तो आगे आप अच्छे से आप सभी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आगे आप फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मत सोचिए आपकी टेक्सटाइल है तो इसमें गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं है, काफी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा वही उठा पाते हैं जो उस लायक होते हैं। क्लियर है? एक मेरे टीचर, उनका एक टीचर है मेरे, उनका कहना है कि अपनी तरफ से आप अपनी गन भरे रखिए, इन द सेंस कि अपनी तरफ से आप कंप्लीट रहिए। कि कई एग्जाम टेक्सटाइल्स के ऐसे आते हैं, DRDO के निकलते हैं, उनमें क्या मांगते हैं, आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए, गेट एग्जाम होता है बीटेक के बाद। तो आप अपनी तरफ से आप कंप्लीट रहिए कि मैं हर एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहूं, तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब अच्छी कैप्चर कर लोगे आप। Yes, sir. We have more than 48 departments. Anything else? Thank you. More than 48 डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, उन पे कंटिन्यू वैकेंसी आती रहती है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यस सर। ये से वो लोग एक हैंडबुक पब्लिश किए थे, एक मैरून कलर का किताब है, नाम मेरे को याद नहीं, लाइब्रेरी में देखना, हर IIST में लगभग होगा वो। यस सर है। उसमें में एक लिस्ट है 2 पेज का। यस सर। कि कौन कौन से ऐसे मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें टेक्सटाइल रिलेटेड गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। तो वो हो सके तो अपने जो IIST के जूनियर हैं या अभी IIST में भी हो तो लाइब्रेरी में जाके उसको एक बार चेक कर लेना सर। मैं शेयर कर IIST में नहीं हो पास। हाँ है सर, मेरे पास है, उसी रेफरेंस से बोल रहा हूँ सर। उसमें 48 लिस्टेड है, अभी जो रिसेंटली नए आए होंगे तो वो और भी होंगे। अभी और इंक्रीज हुआ है कुछ, अभी लेटेस्ट आप जाना गूगल पे, काफी इंक्रीज हुआ है अभी, काफी सेक्टर्स में भी टेक्सटाइल की डिमांड इंक्रीज हुई है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, तो काफी इंक्रीज हुआ है उसमें। यस सर। सर एक और क्वेश्चन है जो अभी मेरी लेटेस्ट आज की ऑब्जर्वेंसी है कि हमारे यहाँ एग्जाम चल रहे हैं। ओके, तो एज ए टीचर जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ या हमें भी याद है एज ए स्टूडेंट, तो हम पढ़ा तो जैसे होता क्या है कि एग्जाम टाइम पे या इंटरव्यू टाइम पे स्टूडेंट को वो आंसर पता भी है, जो हमारे डिप्लोमा भी हो गए, बीटेक भी हो गए, लेकिन वो उस समय उसको बता नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे एज ए टीचर हमें तो पता है कि ये चीज आपको अच्छे से बताई गई है, कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है। एग्जामिनर जब उसको क्वेश्चन को पूछ रहा है तब वो आंसर नहीं दे पा रहा है। वहीं पे जब वो एग्जामिनर अगर उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहा है तो वो उसका आंसर भी आ जा रहा है तुरंत, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे आंसर नहीं आता है। तो ऐसा मतलब किस चीज की कमी है वो उनको, या किस चीज पे काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा एक इसका मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है रिवीजन का। यस सर। काफी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं पूरे दिन क्लास करते हैं कॉलेज में, ठीक है, अपने वापस हॉस्टल में जाएंगे, रूम पे जाएंगे, बैग साइड में रख देंगे कि हमने आज पूरे दिन क्लास की, हमारी आज की पढ़ाई होगी, कल नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे। ओके, अब उन्होंने वो चीज पढ़ी है लेकिन उन्होंने क्या रिवीजन नहीं किया उस चीज, बस एक बार सुना है, एक तरह से क्या होगा, नॉर्मल चीज सुनी है उन्होंने, वो चीज रिपीट नहीं की उन्होंने, नहीं रिवीजन किया उस चीज का, फर्स्टली। सेकेंडली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें रहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस सर। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं खुद एक वाइवा लेता हूँ, बीटेक स्टूडेंट्स का वाइवा लेता हूँ मैं, तो yes, उनको आंसर्स पता रहता है उनको, अब उनको बोलते हैं हाँ सर हमें पता था, बस थोड़ा डर लग रहा था कहीं गलत न हो, एक ये चीज रहती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस सर। जो इसमें रहता है, फर्स्टली मेन जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया है कि आप एक बार क्लास कर रहे हैं, आपने क्लास में अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे डिलीवरी लेक्चर किया, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है उस वहाँ क्लास में ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे ध्यान से पढ़ रहा है, लेकिन रूम पे जाके रिवाइज नहीं कर रहे हैं। यस सर। तो उनके क्या रहेगी, वो चीज 2 दिन याद सर, सॉरी, थैंक यू सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर।
हमारे पास टाइम बहुत कम है और मीटिंग अपने आप ऑफ हो जाएगी, तो उससे पहले मैं आप सभी का थैंक यू बोल देता हूँ सर, और एंड सॉरी भी साथ में कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया या और नहीं हो पाया सर, ये क्योंकि जूम के कारण है। तो लेस देन 1 मिनट का मेरे सिंबल भी आ रहा है यहाँ पे, तो मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है। तो वंस अगेन ईच एंड एवरी वन थैंक्स अ बिग थैंक्स, और इन फ्यूचर ओके